किया था एडोलेसेंस के बारे में, एडोलेसेंस की स्टेज के बारे में। तो बेसिकली एडोलेसेंट जो स्टेज है वो है टीनेज जिसे हम कहते हैं। तो इस एज में जो बच्चे हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं एंड दे नीड गुड काउंसलिंग। इनफैक्ट उस टाइम कैसे उन्हें हैंडलिंग की जाए, ठीक है। दे फील द नीड ऑफ हैविंग रिलेशनशिप एंड इंटीमेसी विद पीयर्स, ठीक है, इंटीमेट रिलेशनशिप हो जाते हैं। और उनकी एडजस्टमेंट, उनकी डेवलपमेंट, उनकी प्रोग्रेस, उनकी कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसे कह सकते हैं, फिजिकल, सोशल, मेंटल, इमोशनल, मोरल, हर डेवलपमेंट उस टाइम जो होती है वो लाइफ लॉन्ग चलती है। उनका इंट्रैक्शन, उनका रिलेशनशिप विद पीयर्स, उनका फैमिली मेम्बर्स के साथ रिलेशनशिप, उनका टीचर्स के साथ, उनकी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, उनकी केयर, अटेंशन, गाइडेंस, ये सब बहुत ही सेंसिटिव होते हैं उस टाइम। सो जनरली बिहेवियर प्रॉब्लम हम देखने को हमें मिलती है उस टाइम। So adolescence is marked by immense turmoil in emotional and behavioral spheres. WHO defines adolescence as the period of life between the age of 10 to 19 years. The adolescent struggles to develop his individuality while still conforming to societal norms. Rapid urbanization and modernization have exposed them to changes in society. The resultant breakdown in family structure, excessive or minimal control confuses the adolescent and makes him or her especially vulnerable to maladaptive patterns of thinking and behavior. Healthy adulthood depends upon successful resolution of these emotional and behavioral problems. Treading on this right drop, most adolescents go through to adulthood normally. All adolescents may not be so fortunate to get the ideal societal and teacher support for this smooth transition. Some develop maladaptive patterns in emotional and behavioral affairs. This augurs ill for the individual's future, resulting in depression, delinquency, and suicides, among other problems. तो बेसिकली क्या है कि इस एज में बच्चे जो एडोलेसेंट बच्चे होते हैं उनकी हर तरह से डेवलपमेंट हो रही होती है और बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। अगर उनको राइट डायरेक्शन, राइट टीचर्स मिलते हैं उस एज में, फैमिली मेम्बर्स का पूरा सपोर्ट होता है, राइट सर्कल है, तो उनकी डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से होती है। अदरवाइज समटाइम्स वो डिप्रेशन में और डेलिक्वेंसी में क्राइम कर सकते हैं कोई भी, या कुछ भी सुसाइड भी कर सकते हैं। तो इस तरह के केसेस काफ़ी देखने को मिलते हैं। Here is the personality and temperament. Swiss psychologist Carl Jung, pronounced Jung, 1875-1961, theorized about personality and temperament. He defined temperament as an individual's true nature or disposition. It is defined by genetics and our inborn reactions to our environment, emotional and social situations. Personality or persona is how we present ourselves to the world. Persona represents all of the different social masks that we wear among different groups and situations, and involves our ego or behaviors. The individual cannot change inborn temperament, but might be able to revise personality. This likely occurs during adolescence as part of identity development. People with personality disorders have a restricted view of the world and find it difficult to participate in social activities. Numerous conditions have been identified: multiple personalities, borderline personality, bipolar and attention deficit, dissociative and obsessive compulsive disorder, and antisocial behavior, etc. So basically जब बच्चा बॉर्न होता है तो हम ये कह सकते हैं बच्चे का एक टेम्परामेंट होता है। दैट टेम्परामेंट जो है वो आपका बाय बर्थ होता है, जेनेटिकली भी होता है,
लेकिन बाय आपके जीन्स में है कि अगर आपकी लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम्स आती हैं या कैसी भी सिचुएशन है, तो आपकी जो इंटरनली आपके अंदर उसकी कैसी हैंडलिंग होगी, आपका इमोशनल जो भी सोशल सिचुएशन है, आपकी ट्रू नेचर कैसी है, ठीक है। सम पीपल आर वेरी हैप्पी गो टाइप्स, सम आर वेरी सैडिस्टिक, सो इट इज ऑल इनबॉर्न इन इंटरनली आपका वैसा नेचर है। लेकिन जैसे हम ग्रो करते हैं, हम कल्टिवेट द थिंग्स, हम कल्टिवेट अपने नेचर में भी चेंज लेकर आते हैं, और पर्सनालिटी हम गेन करते हैं जो कि लोगों को दिखाने के लिए, दैट इज द पर्सोना लाइक। सो उसमें आपका टेम्परामेंट जो है वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत रोल प्ले करता है, एंड आपकी पर्सनालिटी को जो भी पॉलिशिंग जो है वो होती है। सो पर्सनालिटी में भी कुछ डिसऑर्डर आ जाते हैं, लाइक यही मल्टीपल पर्सनालिटी है, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी, बाइपोलर, अटेंशन डेफिसिट, ये सारी जो पर्सनालिटीज है, इस कारण भी डिफिकल्टी होती है उन लोगों को बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में। सो ट्रेट्स टू करेक्टराइज वॉन्स टेम्परामेंट, टेम्परामेंट क्या है? एक्टिविटी लेवल, एक्टिव वर्सेस पैसिव, द proportion of active periods to inactive ones. Adaptability, the ease with which a child adapts to change in his environment. Approach or withdrawal, introvert versus extrovert or assertive versus unsure. The response to a new object or a person. Distractibility, the degree to which extraneous stimuli affect behavior. Intensity of reaction, the energy of response regardless of its quality or direction. Quality of mood, amount of time spent in friendly, pleasant, joyful behavior. Persistence, attention span, the amount of time devoted to an activity and level of distraction. Regularity, rhythmicity, structured versus disorganized, regularity of hunger, excretion, sleep, and wakefulness. Sensory threshold, calm versus anxious. The intensity of stimuli required to evoke a discernible response. बेसिकली क्या है कि जो हमारे टेम्परामेंट है उसके काफ़ी सारे ट्रेड्स हैं, लाइक आपका एक्टिविटी कैसी है, आप एक्टिव हो या पैसिव हो, आप कितनी जल्दी इजीली किसी भी इन्वायरमेंट को एडजस्ट कर लेते हो, आपका विड्रॉल फॉर्म है, आपकी नेचर इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है या असर्टिव है, डायरेक्टली अपनी बात को रख सकते हैं, या अनश्योर, कंफ्यूज्ड हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, कोई भी स्टिमुलस मिलता है, आपकी इंटेंसिटी कितनी है कोई भी रिएक्शन देने के लिए, कि बहुत ज़्यादा हाइपर होके देते हो या नॉर्मल, आपका मूड कैसा है, ज़्यादातर आप किस तरह के मूड में रहते हो, कितने आप परसिस्टेंट हो, कितना आपका अटेंशन स्पैन है, कितने आप रेगुलर हो, क्या आपका कितना जो सेंसरी लेवल है, कितना उसका थ्रेशोल्ड लेवल क्या है, कितने लेवल पे आप सारी चीज़ों को परसीव कर पाते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके इनबॉर्न है, जेनेटिकली भी है और इंटरनल है, तो जीन्स में ही आपके, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका टेम्परामेंट बनता है। Adolescent in crisis. There are many issues that the adolescent faces in today's Indian society that could bring on anxiety, present challenging problems, or require difficult decision making. Each individual may deal differently with these subjects. For some, the matter may be insignificant, while it becomes a crisis for others or their family. An alarming number of our adolescents suffer from emotional and behavioral problems which have their roots in the family environment. बेसिकली वही आता है कि एडोलेसेंट्स जो होते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, स्पेशली इन इंडियन सोसाइटी, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, वो डिसीजन नहीं ले पाते कि क्या चीज़ ठीक है, क्या गलत है। और फिर इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि उनके फैमिली के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे क्राइसिस होते हैं, ठीक है, जिसके कारण उनका इमोशनल और बिहेवियर प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। Then comes here needs of adolescents. So there are a number of needs of the adolescents. So the need for activity surplus energy, नीड ऑफ उनके अंदर बहुत एनर्जी होती है, तो उनको आपको किसी न किसी एक्टिविटी में या किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व करना होता है ताकि वो अपनी सारी एनर्जी उसमें निकालें। नीड फॉर सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, जैसे उनके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं तो फिर एक सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन की भी नीड होती है। नीड फॉर फ्रीडम, नो कंट्रोल ऑफ पेरेंट्स और टीचर्स, उनको पूरी फ्रीडम चाहिए, कोई पेरेंट्स या टीचर्स कंट्रोल ना करें।
नीड फॉर सोशल लाइफ, पीयर्स एंड गैंग्स, ठीक है, उनका अपना एक सोशल सर्कल हो। नीड फॉर सिक्योरिटी, अफेक्शन एंड अटेंशन, ठीक है, अपने उन्हें चाहिए, सिक्योर रहना चाहते हैं कि उन्हें प्यार मिले, अफेक्शन मिले, अटेंशन मिले। नीड फॉर एडवेंचर, डू समथिंग न्यू। नीड फॉर सेल्फ डिपेंडेंस, आई कैन डू। नीड फॉर वोकेशन, imagination and compassion, information overload, net compulsions, कंप्यूटर एडिक्शन, साइबर रिलेशनशिप एडिक्शन। तो हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर आजकल की जो जनरेशन है कंप्यूटर पे ज़्यादा है, सोशल ज़्यादा है, तो बेसिकली दे आर एडिक्टेड, और वो ज़्यादा सारा टाइम अपना सोशल नेटवर्किंग में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। सो ये सारी नीड्स हैं जो कि एडोलेसेंट एज में बच्चे चाहते हैं, ताकि उन्हें लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें हर चीज़ में अपने आप को आगे करने का शौक होता है। और ज़्यादा हम ये देखते हैं कि वो पेरेंट्स या टीचर्स के कंट्रोल में कम होते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को ज़्यादा वो ट्रस्ट करते हैं, जो फ्रेंड्स कहते हैं वो वही करना पसंद करते हैं। Then comes problems associated with adolescence. Sex problems like puberty and physical growth and changes, behavioral and emotional problems like fear, criticism, fear of failure, partialism on the part of parents and teachers, angriness, throwing things, kicking, holding breath, social environment factors, self esteem, academic performance, problem of leisure, family discord, addiction, passions, illness in adolescent, relation with parents, mother or father, changing in family structure, internet addiction, losing track of time while online, increasing isolation from family and friends. तो बेसिकली ये प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि जो भी सेक्स प्रॉब्लम्स हैं, या उनके पास बहुत एंग्री है, दे स्टार्ट थ्रोइंग द थिंग्स, या फिर बिल्कुल वायलेंट हो जाते हैं। सेल्फ स्टीम जो होती बहुत उनके अंदर होती, कुछ भी उनकी ईगो को हर्ट कर दे तो वो बहुत हाइपरली एक्ट करते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो उसको बहुत सीरियसली लेते हैं, पेरेंट्स के साथ उनका कैसा रिलेशन है, कैसे फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ें बेसिकली प्रॉब्लम में आती हैं। सो बेसिकली हम ये बात करेंगे कि जो प्रॉब्लम्स में आ जाता है कि रिलेशनशिप विद पीयर्स, जो बाकी बच्चों के साथ उनका रिलेशन होता है, लाइक उनके जो फ्रेंड्स होते हैं, पीयर्स, हु आर पीयर्स, बेसिकली पीयर्स आर द children and youth of the same age, having similar level of ability, reasoning, social, economical, socio-emotional skills for the needed interaction, interplay, cooperation, existing environment. जो बच्चों का सेम लेवल का एज हो और उनकी सेम ही डेवलपमेंट हो रही है, वैसा ही उनका माइंड सेटअप है, इमोशनल लेवल पे भी और सोशल लेवल पे भी। They spend much time as possible in each other company, उन्हें एक दूसरी कंपनी बहुत अच्छी लगती हैं। They open their self to each other, then get companions for playing, exchanging views and developing friendship. Then they enjoy company and share learning with each other without feeling any pressure of big or small in status. एक दूसरे के साथ पढ़ना खेलना उन्हें बहुत पसंद होता है। सो डेवलपमेंट ऑफ पीयर रिलेशनशिप, धीरे धीरे उनके बच्चों के साथ ही रिलेशनशिप डेवलप होते हैं, वो बच्चों के साथ ही रहते हैं, उनके ग्रुप्स बन जाते हैं। ग्रुप में कई बार ऐसा भी होता है कि ग्रुप रिजेक्शन मिलता है तो भी उन्हें प्रॉब्लम फील होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सक्सेसफुली एंटर कर जाते हैं दूसरे ग्रुप में, कई बार ग्रुप वाले लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। सो नेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनका डिपेंड करता है कि किस तरह से उनका टेम्परामेंट है, और सोशल है या शाई हैं, एडजस्टिंग है या एग्रेसिव टेम्परामेंट है, कोऑपरेटिव हैं या क्वारलिंग है, और या सेल्फिश टेंडेंसी है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उनका टेम्परामेंट कैसा है। अगर बच्चे का टेम्परामेंट खुद से सोशल है तो वो बहुत ईजिली हर ग्रुप में एडजस्ट कर जाएगा। अगर वो खुद ही शाई फील करता है तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। या फिर हम कह सकते हैं किसी का वैसे ही हर हर सिचुएशन में एडजस्ट करने वाला टेम्परामेंट होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि तुम्हें कोई चीज़ नहीं अच्छी लगी तो तुम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो, ठीक है। ऐसे कई लोग
बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, कोई बिल्कुल ही कोई बात हो जाए तो लड़ने लग जाते हैं, या उनके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फिश टेंडेंसीज होती हैं। ठीक है, सो इसी तरह हम देखते हैं डायलॉग देखते हैं कि कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं बाकी लोगों के साथ। उनका अपना टेम्परामेंट भी बहुत मैटर करता है। आप अगर बहुत सोशल हो तो इट मीन्स आपका अपना ही टेम्परामेंट वैसा है। नए फ्रेंड्स बनाना, मेंटेन करना जो एग्जिस्टिंग फ्रेंडशिप है, फिट करना पीयर ग्रुप्स में, प्रॉपर अपने लिए एक्सेप्टेंस लेना, ठीक है, जो भी कोई भी रिजेक्शंस वाली चीज़ें हैं उनको एलिमिनेट करना, बुलीज या गाली गलौज है उसको अवॉइड करना, सोशल कॉम्पिटेंस बनाना, ठीक है, विन करना फ्रेंड्स एंड डेवलप करना अपने फ्रेंड्स वाले रिलेशनशिप्स। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं एडोलेसेंस में काफ़ी होती हैं। और बेसिकली उनको, इन बच्चों को चाहिए होता है एम्पैथी चाहिए, कॉपरेशन चाहिए, म्यूचुअल लव चाहिए, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, फेथ और डेमोक्रेटिक और सोशलाइज्ड नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर चाहिए होते हैं उनको। दे बट हाउएवर इन केस द थिंग्स गो रॉन्ग विद देम, देन वो बहुत ज़्यादा अनसोशल हो जाते हैं, रूडी हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, या फिर एक्सट्रीमली शाई या टिमिड हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, रिवेंज लेने लग जाते हैं, या क्वारलसम हो जाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएटर हो जाते हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। सो देन कम्स द इश्यूज इन्वॉल्व इन पीयर रिलेशनशिप्स। अब पीयर रिलेशनशिप में क्या क्या इश्यूज होते हैं? फर्स्ट इज फ्रेंडशिप एंड जेंडर। अब डिपेंड करता है उस टाइम जो बच्चा है उसकी किस तरह की, किस टाइप की फ्रेंडशिप है, कैसी क्वालिटी है उसमें, क्या करेक्टरिस्टिक्स है या एबिलिटी है बाकी फ्रेंड्स बनाने की, दूसरे फ्रेंड्स के साथ जीतने की, उनके साथ रहने की, फिजिकली मेंटली हेल्दी हैं, इमोशनली वो स्टेबल हैं, सोशली कॉम्पिटेंट हैं। सो देयर इज़ नो कंसिडरेशन ऑफ जेंडर और सोशल इकोनॉमिक स्टेटस और अदर एनी फिजिकल और मटेरियल इंसेंटिव, जस्ट उनका रिलेशनशिप कैसे वो बाकी लोगों के साथ फ्रेंडशिप करते हैं। गर्ल्स और बॉयज़ हों तो उनकी एक्टिविटीज़ अपनी अलग अलग टाइप की होती हैं, फ्रेंडली वो एक्सचेंज करते हैं, कंसीडर करते हैं कि नहीं करते हैं, डिपेंड करता है। म्यूचुअल लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती हैं, टेस्ट और इंटरेस्ट भी उनके डिफरेंट होते हैं, डिपेंड्स अपॉन द जेंडर, गर्ल्स है कि हाँ बॉय है। अर्ली एडोलेसेंस में हम ये भी देखते हैं कि ऑपोजिट जेंडर की तरफ एक अट्रैक्शन भी होता है, ठीक है। द एरिया ऑफ देयर इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज आर वाइडन एंड दे गेट मोर इंटेंसली एंड डीपली इन्वॉल्व इन द फ्रेंडली रिलेशनशिप्स। सो इस तरह से उनके काफ़ी सारे वाइड इंटरेस्ट बन जाते हैं एंड दे गो फॉर मोर इंटीमेट एंड इमोशनल रिलेशनशिप जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है और वो एक लाइफ पार्टनर या कोई बहुत ही मोस्ट रिलायबल फ्रेंड को देखना शुरू कर देते हैं। देन कम्स कंपटीशन एंड कोऑपरेशन। कंपटीशन में हो जाता है कि वो जो भी उनके पीयर्स हैं आपस में, उनके अंदर एक अर्ज होती है कि वो आगे बढ़े, ठीक है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, ठीक है, और थोड़ा सा कंपटीशन वाली स्पिरिट भी होती है। तो देखते हैं जैसे हम छोटे बच्चों को भी देखते हैं, जैसे उनके टॉयज़ हैं, कार्स हैं और फ्लाइंग एरोप्लेन्स हैं, या उनकी कलेक्शन है डॉल्स की, टॉयज़ की। तो जैसे जैसे बड़े होते हैं तो एक दूसरे को लेके कम्पीट करना शुरू कर देते हैं। ऐसे एकेडमिक एरियाज़ में जब आते हैं या को करिकुलर एरिया में आते हैं, गेम्स, स्पोर्ट्स, हॉबीज़ में आते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ में आते हैं, तो देखते हैं कि वो थोड़ा सा कंपटीशन वाली उनके अंदर फीलिंग होती है। कुछ वो अपने पेरेंट्स की आइज़ में भी गुडविल लेना चाहते हैं, एल्डर्स हों या टीचर्स हों। तो एडोलेसेंट्स जो होते हैं बेसिकली कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ में अपना स्टेटस हाई करना चाहते हैं अमंग अदर पीयर्स आल्सो, या फिर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगाना चाहते हैं जो बाकी की गर्ल्स या बॉयज़ उनके साथ हैं। सो जो बॉयज़ होते हैं वो बेसिकली मैस्कुलिन शो करते हैं अपने आप को एंड दे वांट टू बी गेट गुडविल इन द आइज ऑफ द गर्ल्स आल्सो उस टाइम। सो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है, दैट इज इन फैक्ट हेल्दी है, ठीक है, दे आर गेटिंग पॉलिश्ड देमसेल्व्स ओनली, बट सम टाइम ये अनहेल्दी भी हो जाती है। रिवेलरी, जेलसी, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के लिए कई बार हार्मफुल भी हो जाती हैं। तो हमें ये देखना है कि हेल्दी कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, ना कि इस तरह से जाएं, कॉम्पीट करें लेकिन इन्हें हेल्दी वे, उनकी अपनी एबिलिटीज़, कैपेसिटीज़, थिंकिंग स्किल्स, ये सारी चीज़ें आगे डेवलप करें।
Then comes they are drifted towards the cooperating thing also. एक दूसरे को कॉपरेट भी करते हैं, एक दूसरे को पुल करते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज करते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग करते हैं, बहुत सारी गेम्स होती हैं जिसमें वो कोऑपरेट करके खेलते हैं, वेलफेयर चाहते हैं अपने ग्रुप का, जो उनके पीयर ग्रुप के मेंबर्स हैं उन बाकियों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअली कॉम्पिटेंट होते हैं और ग्रुप का उनका जो गोल होता है उसको पूरा करने के लिए वो कम्प्लीटली आगे इकट्ठे मिलकर आगे बढ़ते हैं। देन कम्स कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब हमने बात की कंपटीशन है उस स्टेज में बहुत ज़्यादा है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट भी है, कॉपरेशन है, ट्रस्ट है, म्यूचुअल बेनिफिट है, सारी चीज़ें हैं, एडवांटेजेस भी हैं कंपटीशन के, एक दूसरे के आगे स्टैंड अगेंस्ट भी खड़े हो जाते हैं, बिटर भी हो जाते हैं, कॉर्डियल रिलेशनशिप भी है और कॉन्फ्लिक्ट भी है। तो जब कहीं किसी चीज़ पे उनकी अपने आपस की अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती है तो कॉन्फ्लिक्ट भी राइज हो जाता है। तो उसमें हमें कॉपरेशन चाहिए होता है रेदर देन कंपटीशन। सो कॉपरेशन में क्या होगा, इंटरनलाइज्ड होता है, ठीक है। कॉपरेशन तो मोटिवेट किया जाता है एक दोनों टीम्स को लेके कि हमें बेसिकली क्या अचीव करना है, क्या परफॉर्म करना है। तो इन टोटल देखा जाता है, रिजॉल्व किया जाता है कि किस डायरेक्शन में उस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। तो नेगोशिएशन इज देयर, और लेकिन बेसिकली बी प्रॉस्पेरस एंड लेट अदर्स बी प्रॉस्पेरस। ऐसा नहीं कि तुम्हें ही जीतना है, तुम्हें ही अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो इस तरह से करना होता है कि अगला भी आगे बढ़े और तुम भी आगे बढ़ो। सो वेलफेयर एंड प्रोग्रेस ऑफ ईच अदर इन वंस लिविंग एंड वर्किंग रिलेशनशिप, तो इस तरह से चलता है। देन कम्स इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर रिलेशनशिप्स ऑन डेवलपमेंट। सो जैसे ही बच्चों के साथ खेलते हैं, लड़ते भी हैं और उनका आगे सपोर्ट भी रहता है, तो एक डीप इमोशनल बॉन्ड बनता है, बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ठीक है। हैबिट्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, स्किल, ये सब डेवलप होते हैं बच्चों में। तो सिंपल होते हैं, ईजियर और ग्रास्पेबल पीयर्स होते हैं एक दूसरे की कंपनी में। उनको कोई हेजिटेशन नहीं होता, कोई फियर नहीं होता, और बहुत इजीली अपनी वीकनेस और शॉर्टकमिंग्स एक दूसरे को बता देते हैं। ट्यूटरिंग एंड असिस्टेंस गिवन बाय द फेलो पीयर्स। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो जो बाकी के पीयर्स हैं वो उनको अच्छे से समझा देते हैं। तो हमें देखने को मिलता है कि फिजिकल, मोटर, कॉग्निटिव, सोशल, एस्थेटिक एंड मोरल डेवलपमेंट होता है। स्पीड इन लर्निंग एज, इसमें हम देखते हैं कि बहुत जो बच्चे होते हैं उनकी अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली उनकी स्पीड होती है, तो इस तरह से हर किसी की डिफरेंट है। एंड सोशल स्किल्स भी उनकी सबकी अलग अलग टाइप की होंगी। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, विनिंग फ्रेंडशिप्स, गेटिंग एंट्री इनटू अ प्री एग्जिस्टिंग पीयर ग्रुप, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, ये पीयर ग्रुप का उन्हें बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। दे हैव टू फेस बुलीज, फिटिंग इनटू द नॉर्म्स ऑफ द कल्चर, असर्टिवनेस होना, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करना, कंपटीशन एंड कोऑपरेशन रखना, earning respect and recognition, exercising desirable control over emotions, aggression और withdrawal tendencies, ये सब होती हैं। So हम देखते हैं कि बच्चों जो हैं एडोलेसेंट, जो पीयर ग्रुप में बच्चों का जो एडजस्टमेंट है वो जो है बहुत ही वो होता है, क्या कहते हैं, मुश्किल भी होता है, लेकिन उनको पीयर ग्रुप में ही मज़ा आता है, उनको उसी में ही ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। डिफ़िकल्टीज तो आती ही हैं, दे कैन ओपन देयर हार्ट एंड माइंड टू देयर पीयर्स ओनली। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्टीज हैं, जो कोई भी इंजॉय भी करना है, सौरव करना उन्हें बच्चों के साथ ही अच्छा लगता है। कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन और ट्रबल्स भी साथ में होती हैं। तो लेकिन पीयर्स के साथ उनका कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होता है, लिंग्विस्टिक एबिलिटीज़ डेवलप होती है, एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं डिफरेंट सोशल रोल्स को। दे आर फॉन्ड ऑफ देयर प्रियर रिलेशनशिप्स ओनली, उन्हें उन्हीं के साथ अच्छा लगता है। दे विश टू स्पेंड एज मच टाइम एज पॉसिबल विद द पीयर्स। They speak the language of their peers, patronize the peer group lifestyle, believes or mostly like to be fashioned or modeled on the ideals of the peer relation। किस तरह के फैशन में हैं वो, उसी तरह का वो करना शुरू करते हैं। हाँ, अगर वो बैड कंपनी में चले जाएं बच्चे तो और भी ज़्यादा उनका प्रॉब्लम हो जाता है, एंटी सोशल बिहेवियर में आ जाते हैं, अनहेल्दी और अनडिज़ायरेबल हैबिट्स भी उनको डल जाती हैं। सो हम ये देख सकते हैं कि इस तरह की बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं। बाकी